Hello everyone, Namaskar, Abhinandan Avar. In the teaching learning process, as usual, we are discussing about the present tense. And in your last video, we discussed about the first three parts of present tense. And today, I am going to discuss about the last part of present tense. That is the fourth part of present tense, present perfect continuous tense. So today, I am going to discuss about present perfect continuous tense. First of all, as usual, we have come to know about the rule and regulations. Present perfect continuous tense, we put has been or have been before the present participle form of the verb, as it has been raining for 2 hours. 1.1 A part, it describes an action that began in the past, is still continuing and may extend into the future. As example is also given, she has been waiting for you for 3 hours. And after reading of these instructions or the formation of this present perfect continuous tense, and at once after reading these instructions, at once I will tell you about the formation of the rule and regulation separately by writing down here singular and plural, subject or pronouns, whatever. Be to express an action that in a sentence which begins with for how long. My dear students, sentences which begins with for how long and since when, as in, for example, for how long have you been sitting here? Since when has he been living in this house? Next point, to express an action which began in the past and has been just completed, its result is visible in the present. And the example is also given here. I have been studying since morning and I am much tired now. So students, यहाँ इसका ये मतलब है कि जो आपकी ये formation है, this is all about in English. But after that, right now, I am going to tell you about the rest rule and regulations in which you have to keep remember which the regulation is used for which purpose. So students, now recently I am telling you about the rest rule and regulation. First of all, I will draw a line here in the formation of present perfect continuous singular and the plural pronoun and subjects. First of all, singular and plural. In singular sense, what we have to use, in plural sense, what have to be used. So first of all, here it is subject plus has. So here it is, we can just imagine present perfect. And as usual students, in perfect sense, we always use singular with has and plural have. So first thing which you have to follow according to the present perfect. So we have to take care about this thing. We have to take has, only has from the perfect sense, and continuous ing means present participle. So it will be, we have to connect extra thing, that is been. Subject plus has been plus verbs first form plus we can say this is present participle. This is known as present participle, and in participle sense that is the continuous process. First form ing plus object such as it has been raining for 2 hours. 2 hours. So सबसे पहले students, first of all I just want to tell you about the sense of since or for. इसमें बच्चे क्या रहेगा, since और for का यूज होगा. तो सबसे पहले मैं एक बार आपको since और for के बारे में बता दूं. since और for क्या है बच्चे, जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा. क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स दैट उसके अंदर आपका क्या दिया गया है, मॉर्निंग दिया गया है, उसमें आपका इवनिंग दिया गया है, उसमें आफ्टरनून दिया गया है, उसमें आपका कोई भी एक टाइमिंग दिया है, जैसे 6 o'clock 6 बजे से. Another one thing, there can be any year such as 2010. means that स्टूडेंट, मेरा यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो since है
वो पॉइंट ऑफ टाइम है, मीन्स ये सर्टेन है, मीन्स ये काउंटेबल है, मीन्स ये फिक्स्ड है। इन चीजों के साथ जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं कि अगर मैं ये कहूं मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं दोपहर से पढ़ रहा हूं, मैं 6 बजे से पढ़ रहा हूं, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट सिंस लगेगा। प्लीज 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 ध्यान से सुना कीजिए और उस पर अमल किया कीजिए बच्चे। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक ग्रामर की आपको नहीं आएगी, एट एनी कॉस्ट, एट ऑल, एट एनी रेट। सो ऑलवेज कीप रिमेंबर अबाउट द रूल एंड रेगुलेशंस। और अभी मैंने आपको ऑलरेडी पहले बहुत बताया है कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हमारा चालान कट जाता है, तो यहां पर आपके नंबर कट जाते हैं बच्चे। वो चालान से कम नहीं होते, क्योंकि सारा जो करियर है आपका आपकी मार्किंग पे डिपेंड करता है, आपके परसेंटेज पे डिपेंड करता है। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो बेटा ये दुर्घटना तभी घटती है। आप कई बार कहते हैं नहीं सर ये मेरा ठीक है, नहीं है। आप पूरे रूल और रेगुलेशन को जब तक डीपली नहीं करेंगे, until you will do that thing through the core of your heart, through the deep of your heart, through the depth of your heart, till then you will never get successful. Always keep it. I am always giving you a complete guidance बच्चे। मैं कभी भी आपको मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करूंगा। I will tell you as much as I know. मैं आपको उतना बताऊंगा बच्चा जितना मैं जानता हूं। फिलहाल मैं आपको कह रहा हूं सिंस कहां लगेगा बच्चे? पॉइंट ऑफ टाइम है जो हमारा सर्टेन है, जो काउंटेबल है, जो फिक्स है, जो निश्चित है, जिसको हम गिन सकते हैं, वहां आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। 4 कहां लगाएंगे बेटा? जो आपका ये बच्चे अनकाउंटेबल है, अनसर्टेन है, जो अनकाउंटेबल है, अनसर्टेन है। जैसे मैं यहां पर क्या लिखता हूं 4 के लिए? 4 के लिए मैं लिखता हूं मैनी डेज। 4 के लिए यहां पर क्या है? मैनी डेज, मैनी ईयर्स, मैनी डेज, मैनी ईयर्स। A variety of time of durations are there which is related to the uncountable or uncertainty. काफी सारी चीजें हैं, कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से, कई सालों से, कई सेकंडों से, कई मिनटों से। तो बेटा यहां पे काउंटेबल नहीं है कई मिनट कितने, कई दिन कितने, कई घंटे कितने। we have complete confirmation about the continuity और about the countable system। जब हमारे पास काउंटेबल रहेगा बच्चे आप सिंस लगाएंगे। सो प्लीज कीप रिमेंबर। और जब हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी कि हम उस चीज को गिन नहीं पा रहे, कई दिनों से, कई घंटों से, कई महीनों से, कई सालों से, तो बच्चे हमारे पास सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेन है। वो अनसर्टेन है तो बेटा हम 4 लगाएंगे। ये आपका सिंस और 4 मैंने बताया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चे। चलिए अब हम बात कर रहे थे सिंगुलर एंड प्लूरल की, तो हम सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है सिंगुलर। इसमें हमारे पास इट है, हैज बीन, रेन के साथ आपका पार्टिसिपल यूज हो गया बेटा, रेनिंग हो गया, फॉर 2 आवर्स। अब मैंने यहां पर 4 लगाया है बच्चे, इसी से मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। जो मैंने यहाँ 4 लगाया है वो इसलिए लगाया है कि 2 घंटे से बारिश हो रही है। वी हैवंट कंप्लीट कंफर्मेशन। 2 घंटे क्या वो लगातार के हैं? 2 घंटे कौन से 2 घंटे हैं बच्चे? हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि कौन से 2 घंटे हैं, निश्चित नहीं है। अगर हम कहें सुबह से, दोपहर से, रात से, पिछले 2 घंटे से, कॉन्टिन्यूसली, जब ऐसी चीजें आ जाती देन इट बिकम्स इट फॉर्म्स इन द सेंस ऑफ सिन। चलिए अब यहाँ पर 4 2 आवर्स है, इस चीज को मैं यही रखूंगा। अब मैंने लगाना है यहाँ पर इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यू नो बेटा अब सुबह से बारिश हो रही है, इसलिए मैंने यहां पर सिंस लगाया है और यहां पर 4 लगाया है, क्योंकि यहां पर अनसर्टेन है, अनकाउंटेबल है। दिस इज अनसर्टेन, दिस इज अनकाउंटेबल। ये हमारे पास कोई निश्चित समय नहीं है। यहां पर ये हमारी सर्टेनिटी है बच्चे, सुबह से हम गिन सकते हैं। ये हमारा काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं उस समय को कि कितने घंटे, कितने दिन, कितने सेकंड या जो भी समय है वो क्या हो गया। तो बेटे यहाँ 2 अलग अलग मैंने आपको अब समझा दिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 लगाएंगे अनसर्टेनिटी के साथ, अनकाउंटेबल के साथ, सिंस लगाएंगे सर्टेनिटी के साथ और काउंटेबल के साथ। सो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस थिंग। ओके नाउ एज यूजुअल अब हम पहले हमने लिखा इसका सिंपल सेंटेंस, अब हम इसी की फॉर्मेशन को नेगेटिव में लेके जाएंगे बेटा। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा बेटा? हैज और बीन के बीच में नोट लगाएंगे बच्चे। अब देखिए हैज और बीन, इसके बीच में हमने नोट लगाया है। हैज नोट बीन, नोट हैज बीन नोट, दैट विल बी रॉन्ग। ऑलवेज कीप रिमेंबर इट हैज नोट बीन। अनदर वन थिंग रेनिंग, और एज यूजुअल फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स।
अनदर वन थिंग क्या रहेगी बेटा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, एज यूजुअल जैसे हमने ओरसन टेंसेस में किया, सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, हैज इट, देन क्या लगाएंगे, बीन, देन क्या लगाएंगे बच्चे, रेनिंग, एंड एज यूजुअल फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ये रहेगा जो है आपका थर्ड पार्ट में। अब इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट जो है सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव एज यूजुअल हम पीछे वाले कॉपी कर लेंगे, हम यहां पर हैज लगाएंगे, इट यहां इसके बाद लगेगा, हैज इट, किसके बाद, हैज के बाद इट आएगा सब्जेक्ट, और इट के तुरंत बाद आपको नोट लगाना है, और नोट के बाद फिर बीन आएगा, एंड रेस्ट विल रिमेन एज इट इज, रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। अब मैं बच्चे आपको हिंदी में इसकी पहचान बता दूं, इससे पहले मैं आपको प्लूरल बताऊं। इसकी पहचान रहती है बेटा, से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहा हूं। से रहा हूं मीन्स दैट कि वो एक्शन जो पिछले समय से चल रहा है और वर्तमान में कंटिन्यू है और फ्यूचर तक कंटिन्यू रह रहा है, तो उसमें हम से रहा है, से रही है, से रहा हूं, ऐसे आइडेंटिफिकेशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाएंगे। सपोज कीजिए आपकी कोई वेट कर रहा है, नॉर्मल सी बात है, तो आप क्या कहोगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, बट दिस इज नॉट सो कंपल्सरी कि आपका उसमें सिंस और फोर आएगा। हमारे स्पोकन की बात है, ये हमारे स्पोकन का लहजा, कि अगर हमने किसी से पूछने की, अरे आप मेरी कितनी देर से इंतजार कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, तो नेक्स्ट फिर आगे रिस्पॉन्स उसी सेंटेंस में जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। नेचुरल सी बात है बच्चे, जैसा रिस्पॉन्स हम स्पोकन में करेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, आप मेरी कितनी देर से इंतजार कर रहे हो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर, 2 टाइम्स में फॉर क्यों आया, एक फॉर आपकी प्रोपोजिशन यू से पहले आएगा, ऑब्जेक्ट से पहले, सेकंड वन आपकी सेंस क्लियर करने के लिए क्या आप उसमें सिंस लगाते हैं, क्या उसमें फॉर लगाते हैं, फॉर लगाएंगे तो फॉर की सेंस लगेगी। तो बेटे ये यही चीज होती है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे ये याद रखनी है दोनों तरह से। अब हम प्लूरल की बात करेंगे बच्चे। प्लूरल में हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल एज यूजुअल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, दिस इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल या प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सेंस बोलेंगे। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि परफेक्ट से हम हैज लेने और हैव लेने, अगर हमने प्रेजेंट के पार्ट अच्छे से किए हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में हमारा क्या रहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें हम यूज करते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो ये जो पार्ट रह जाएगा ना बच्चे, ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का मिक्स हो जाएगा, प्लस बीन और सिंस और फॉर यूज हो जाएगा। अब इसके भी कुछ अपने रूल्स होंगे ना, तो सारे ही तो ये पीछे वालों की नकल नहीं करेगा बच्चे। सो कीप रिमेंबर, अब हमारे पास परफेक्ट है तो ध्यान रखिए कि परफेक्ट से इसमें सब्जेक्ट के साथ हैज लग जाएगा, फिर इसकी अपनी फॉर्मेशन के लिए जो कार्य चल रहा है बीन लग जाएगा, फिर कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में हम क्या ले लेंगे बच्चे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लेंगे। सो चलिए इसी चीज को हम यहां पर करते हैं, दे हैव बीन वेटिंग, ये एग्जांपल दे रहा हूं, दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। बेटा इसमें ये कोई चीज नहीं है, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि सिंगुलर में तो सिंस आएगा, प्लूरल में फॉर आएगा, इट डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपका सिंस सिंगुलर में भी आ सकता है, प्लूरल में भी आ सकता है, आपका फोर सिंगुलर में भी आ सकता है, प्लूरल में भी आ सकता है, ऐसा कोई कानून नहीं है बच्चे इनके लिए। सिंस और फोर में आपने सिर्फ उस सेंस को देखना है, क्या वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है देन वी हैव टू यूज सिंस। इफ देयर इज गिवन द पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारा फोर रहेगा, जो मैंने आपको फोर बताया बेटा, फोर आपका पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास सर्टेनिटी नहीं होती, अनसर्टेनिटी होती है पीरियड ऑफ टाइम में, अनकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें हम समय को गिन नहीं सकते बेटा। तो यहां पर आप दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से ही मेरी इंतजार कर रहे हैं, से रहे हैं, से रहे हैं, वही सेंस आ रही है हमारी यहाँ पर। उसके बाद चलेंगे बेटा हम नेगेटिव की सेंस में एज यूजुअल, इसी के साथ में आपको बता देता हूं, दे हैव नोट बीन, इन द मिड ऑफ हैव और बीन यू हैव टू यूज नोट, बट नोट कंप्लीट राइटिंग हैव बीन नोट, नो दैट विल बी रॉन्ग बेटा, हैव के बाद नोट आएगा, इसी तरह हैज के बाद नोट आएगा।
यहाँ हैव नॉट फिर बीन हो जाएगा, बीन वेटिंग फॉर मी देन सिंस मॉर्निंग। एज यूजुअल जो बच्चे आपके नेक्स्ट रहेंगे, अब अगर हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव की बात करते हैं बेटा, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हैव आ जाएगा, हैव के बाद दे आफ्टर बीन, बीन आफ्टर मेन वर्ब जिसमें पार्टिसिपल यूज होगा, उसके बाद फॉर मी एंड आफ्टर दैट एज यूजुअल सिंस मॉर्निंग। नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इंटेरोगेटिव तो नेक्स्ट आई डू होप सो दैट कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी आपकी समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए हमें क्या करना है बच्चे, इंटेरो और नेगेटिव करना है, तो इंटेरो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, हैव दे नोट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, क्या वे मेरी सुबह से इंतजार नहीं कर रहे हैं। बेटा कहीं ना कहीं देखिए, जब हमारे पास बेसिक इंग्लिश होगी तभी हम स्पोकन कर पाएंगे, तभी हम स्पीकिंग में एक जो है माहिर हो पाएंगे, उसमें महारता जो है हासिल कर पाएंगे। तो ये चीजें जरूरी है बच्चे। डायरेक्ट आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, डायरेक्ट समझ आता है जहां पर डायरेक्ट मेथड यूज होता है बच्चे, उसके लिए फॉर दैट वी हैव टू बी इन दैट एटमोस्फियर, सच काइंड ऑफ एटमोस्फियर इज नॉट इन अवर एरिया। तो हमारे एरिया में बेटा वो नहीं है, लेकिन वहां पर ये चीज काम करेगी जहां पर एटमॉस्फेयर होगा, जहां 24 घंटे का वातावरण एक वेल एजुकेटेड वेल प्लान्ड एरिया होगा, जहां पर एजुकेटेड एरिया होगा, वहां पर होगा जहां डायरेक्ट मेथड यूज होगा। अब फॉरेनर है बेटा, फॉरेनर में उनका एक बच्चा है, उसको ये जरूरी नहीं है प्री नर्सरी से ABCD सिखाने की, जब वो स्पोकन करने लगे, बोलने लगे, तो उसको जरूरत नहीं बेटा इंग्लिश सिखाने की, क्योंकि ये तो जन्मजात है, एक जेनेटिक लेवल पे आएगा कि उनका एटमॉस्फेयर भी है, और वो एक इंग्लिश मैन और वुमेन के बच्चे। वी आर इंडियंस, और हमारे इंडियंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाउ टू और वेयर टू में रह जाती है, जिंदगी भर सिमट कर रह जाते हैं। कोई इंग्लिश बोल रहा है बेटा, कैसे और कहां से, कैसे और कहां से ये चीजें बताएंगे, बट वी हैव टू कैप्चर ईच एंड एवरी पॉइंट, रूल एंड रेगुलेशंस इन दिस क्या है हमारा ब्रेन, इस हमारे ब्रेन में हमें उस चीज को लेना है, समझना है बेटा, रटना नहीं है। स्पोकन रटने से नहीं आएगा, टेंसेस रटने से नहीं आएंगे, गैप फिलिंग का क्वेश्चन रटने से नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग से आएगा। यू हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस, इफ यू विल फॉलो रूल एंड रेगुलेशन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेसफुल माइंड। तो आप अगर रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो चलिए ये बेटा ओवरऑल सारी फॉर्मेशन मैंने आपको आज बताया। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट the some point related to point of time and period of time. Point of time separate and period of time तो बच्चे अब आपको पता चल जाएगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं पॉइंट ऑफ टाइम के बिल्कुल एग्जैक्ट बिलो सिंस, एंड हियर आई हैव रिटन फॉर। क्लियर? तो चलिए पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस मॉर्निंग हम ये चीज डालेंगे बेटा, सिंस मॉर्निंग ये चीज डालेंगे। अनदर वन क्या डालेंगे हम, सिंस मंडे, सिंस जून, एंड सिंस देयर कैन बी एनी ईयर ऑल्सो 1779, 2005, 2010, 2015, whatever the year can be, कोई भी ईयर हो सकता है। फॉर में बच्चे अब हमारे पास कुछ है ही नहीं निश्चित, फॉर 2 hours, फॉर अ वीक, अनदर वन और क्या हो सकता है, फॉर मैनी डेज, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर 5 years, कोई भी हो सकते हैं बेटा ये 4-5 years। मेरा यहाँ कहने का मतलब है बेटा, मैंने ये डायग्राम के थ्रू आपको सेपरेट बताया।
पॉइंट ऑफ टाइम आपका सर्टेन रहता है, काउंटेबल रहता है, सेंस में जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम जो है 4 है, अनसर्टेन रहता है, अनकाउंटेबल रहता है। अब बच्चे आपको पहचान हो जानी चाहिए बड़ी इजीली, वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम में सारे पॉइंट दिए हैं, मॉर्निंग है, मंडे है, जून है, ईयर है, लेकिन यहाँ पर भी कोई पॉइंट नहीं है। हमारे पास पीरियड है वो घंटों से, सप्ताहों से, लंबे समय से, कई दिनों से, कई सालों से और 5 सालों से। तो बच्चे ये सारी जो फॉर्मेशन है वो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की है। सो उम्मीद करूंगा बेटा, आई डू होप सो दैट यू विल अंडरस्टैंड विद द डेप्थ ऑफ योर हार्ट एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट. Try your level best to solve the question which will be in the form of gap filling. Along with it, you will try your level best to apply all these rule and regulation into your day-to-day life in the form of speaking. आप स्पीकिंग में भी थोड़ा सा इस चीज को यूज करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोग सक्सेस होंगे। सो ये 4th पार्ट रहा आज आपका, लास्ट पार्ट प्रेजेंट का। नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टेंस, दैट इज द पास्ट टेंस। और दूसरी बड़ी चीज बच्चे, आपके एग्जाम्स हाफ ईयरली एग्जाम, ऑलवेज कीप रिमेंबर, आप अपना रिवीजन करें बच्चे, जितना अच्छे से हो सके आप रिवीजन करें। प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को टिक करें। जूम ऑनलाइन मीटिंग होती है, आप उसमें डिस्कस करें। एंड नाउ यू आर फ्री टू कम टू स्कूल विद द कंसेंट लेटर ऑफ योर parents, with the permission of your parents. So your parents have to give the consent letter to the school. If ever you are agree, your parents are agree, then come to school, take the consent letter, submit there, and then come to the school, share your problem, and definitely there will not be any problem to anybody else. So don't be careless, stay home, stay safe, be strong. लेकिन अगर आपको जेन्युइन लगता है बेटा तो आप स्कूल आइए और अपना ध्यान रखिए, तंदुरुस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, बट इतनी भी मौज नहीं लेनी बेटा, क्योंकि एग्जाम दे आर डेफिनेट, एग्जाम्स आर डेफिनेट, दे विल बी हेल्ड एंड हेल्ड, माइंड इट बेटा। बच्चे एग्जाम होंगे, लापरवाही मत करिए। स्पेशली कहूंगा तो सभी स्टूडेंट्स को, बट स्पेशली 10th एंड +2 ऑल्सो। बाकी अगर हम बात 9th और +1 की भी करते हैं तो बेटा 9th के बाद 10th और +1 के बाद +2 है। यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर काइंड लिसनिंग एंड वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।